Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Joseph. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama,
Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Namo Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namini Namaste Saraswate Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashatai Deshatarine Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Padayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namane Gotase Namaha Vanchakalpatarubhyasya Kripa Sindhubhya cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesh Gopika Kanta Radha Kanta Namastate Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusate Devi Pranamami Hari Priya Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar
श्रीवासादि गौ भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हिमालयन यात्रा पे इस प्रकार से संग एक साथ लेके आना थोड़ा मुश्किल रहता है। ये सोचते हुए आई हैड मेड सम शॉर्ट क्लिपिंग्स और ऑडियो स्निपेट्स, ताकि एटलीस्ट हमारा अगर मिलना भी ना हो तो आप कम से कम उन स्निपेट्स को सुनकर एटलीस्ट यू कैन रिफ्रेश योर मेमोरी। हम कहाँ जा रहे हैं, उस जगह का क्या मूल्य है, क्या सिग्निफिकेंस, इतिहास क्या इत्यादि है, उस प्रकार से। सो हम आई मीन my mind is running through different things. We kind of thought of discussing something on the not the story, but about the subject matters raised in the movie titled as Kerala Story. काफ़ी लोगों ने प्रश्न पूछा था, तो उसके ऊपर we thought we'll have a discussion, maybe a candid discussion. But उससे पहले maybe I'll just briefly speak a little bit about this place and about Mother Ganges. Very short, because कब सूर्यास्त हो जाए और कब मच्छरों का आतंक शुरू हो जाए पता नहीं है। So it's a new place. अदरवाइज जनरली हमारे प्रीवियस यात्रा में हम डॉम में बैठ जाते थे 70-80 लोग। अभी 80 का 150 हो गया, तो डॉम यहाँ पे इतने बड़े नहीं हैं कि 150 लोग आ सकें। देयर इज़ नो प्लेस, वी फिगर्ड आउट। टेम्पल में भी पता करा, कहीं भी ऐसी जगह नहीं थी जहाँ इतने लोग बैठ सकें। ऑनली रूफ टॉप इज़ अवेलेबल, परंतु हम लोग आते आते इतने लेट हो गए कि उस प्रकार से थोड़ा मुश्किल। एनीवेज, दिस इज़ कॉल्ड एज उत्तर काशी। उत्तर मीन्स नॉर्थ, काशी मीन्स वाराणसी। इसको नॉर्थ वाराणसी के नाम से इसका सिग्निफिकेंस है। यू कैन कॉल इट दिस इज एट द फुट हिल ऑफ गंगोत्री। या उत्तर काशी में काशी विश्वनाथ, ये भगवान शिव का मंदिर आता है। उसका इतिहास इज़ नॉट वेरी क्लियर, क्या डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री रही है, बट इस टेम्पल को अब से करीबन 200 साल पहले रेनोवेट किया गया था, और जो यहाँ शिव जी का विग्रह है बहुत प्राचीन विग्रह है। I wish to speak about Lord Shiva and Lord Shri Krishna's relationship also. Maybe we'll see. Maybe at Rudraprayag or somewhere we'll speak. That's a subject matter in itself. इससे आगे हम जब जाते हैं तो गंगोत्री आता है। गंगोत्री एक्चुअली इज द प्लेस जहाँ पे राजा भागीरथ ने तपस्या करी थी। भागीरथ was son of Anshuman, if I'm correct. Not Anshuman, was son of Dilip. Dilip was son of Anshuman. Anshuman was son of Asmanjasya. एंड असमंजस और सन ऑफ किंग सागरा, और सागर जिसको कहते हैं। सत्ययुग की कहानी है। श्रीमद् भागवतम में इसका उल्लेख आता है कि कैसे सागर महाराज अपने काल में अश्वमेध यज्ञ करना चाहते थे, पर इंद्रदेव एक बार फिर इंद्रदेव विचलित हो जाते हैं, इनसिक्योर हो जाते हैं, और फिर वह जो चौथे स्कंद में पृथु महाराज की कहानी में होता है, वैसे ही 9वें स्कंद की कहानी में भी आता है, वो घोड़ों को चुरा लेते हैं। तो इसके बारे में हम पहले भी मायापुर यात्रा में चर्चा कर चुके हैं। सो आई बिलीव सब इसके बारे में जानते होंगे, नहीं तो आई विल गिव अ ऑडियो नोट। इट्स गोना टेक अ टाइम फॉर इट। बट गंगा से हम क्या सीख सकते हैं? इट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट एवर। यू नो, ऑल ऑफ यू हैव योर IT प्रोजेक्ट्स। वो एक टीम से दूसरे टीम में, ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन से कम 3 जनरेशन लंबा ये प्रोजेक्ट खींचा था। फाइनली जाके भागीरथ महाराज यहाँ पे जो गंगोत्री नाम की जगह है, वहाँ पर उन्होंने एक शिला है जहाँ पे मंदिर आज बना हुआ है, वहाँ पे बैठकर उन्होंने भगवान शिव जी के प्रति प्रार्थना करी थी। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, माता गंगा जब तैयार हो गई थी आने के लिए, उन्होंने कहा देखिए मैं 2 कारणों से धरती पे नहीं आ सकती। पहला कारण, मेरा भाव इतना तेज रहेगा। यहाँ पे हम उनको गंगा कहते हैं, भागीरथी कहते हैं, अलकनंदा कहते हैं, अलग अलग नामों से जानते हैं। स्वर्ग में उनको आकाश गंगा के नाम से जाना जाता है। तो उन्होंने कहा मेरा बहाव इतना तेज होगा कि धरती अपने क्या कहते हैं ऑर्बिट से हिल जाएगी एंड विल फॉल इनटू द ओशन। यू नो, उस प्रकार से, नॉट द ओशन ऑफ दिस वर्ल्ड बट द ओशन ऑफ दिस होल क्रिएशन इज हाफ फिल्ड विद ओशन। गर्भोदक ओशन में वो गिर जाएगी। तो मुझे धारण करने के लिए कोई होना चाहिए। कौन धारण कर सकते हैं? शिव जी। तो इसलिए उन्होंने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने वहाँ पे तपस्या करी।
तो कल हम जब जाएंगे गंगोत्री, वहाँ पे विल टेक अ दर्शन, जहाँ पे गंगोत्री जो वो मंदिर बना हुआ है, वहीं पे सहस्त्रधारा नाम का एक क्या कहते हैं वाटरफॉल है, जहाँ बताया जाता है कि वो सारा गंगा का पानी एक साथ एक छोटे से एक प्रकार से पत्थरों के छोटे से इलाके में आके फिर नीचे गिरता है। जहाँ वो नीचे गिरता है बहुत तेज़ी से गिरता है, जाएंगे तो आवाज़ सुनाएगी, धड़ धड़ करके आवाज़ आती है, और वहाँ नीचे शिवलिंग है। तो बताया जाता है वहीं पर शिव जी ने गंगा को अपने सिर पर धारण किया था। तो गोमुख कहा जाता है वह जगह है जहाँ से गंगा उत्पन्न होती हैं, और वह गोमुख आज गंगोत्री से कम 18 में भी हो सकता है 2023 में 19 किलोमीटर दूर हो गई होगी। परंतु प्राचीन काल में गोमुख और गंगोत्री एक ही स्थान था, परंतु कलयुग के प्रभाव मतलब पाप कर्मों और दूसरा पाप कर्मों के कारण जो पॉल्यूशन बढ़ा है उसके कारण वह गोमुख पीछे होता चला गया। गोमुख इज अ व्हाट यू कॉल एज ग्लेशियर, इज अ ग्लेशियर, जो आज भी करीबन 20 किलोमीटर लंबा ग्लेशियर है और करीबन 4 किलोमीटर वाइड ग्लेशियर है। तो इस प्रकार ये गोमुख तो हम नहीं दर्शन कर पाएंगे, 18 किलोमीटर का ट्रैक है जिसके लिए डेडिकेटेड 2 दिन लगते हैं। परंतु विल गो टू गंगोत्री इज अ प्लेस जहाँ पर माता गंगा इस धरती पे सबसे पहले आई थी। सो ओनली वन पॉइंट आई वांट टू मेक अबाउट मदर गैंजेस, जो आप लोग कल जब गंगोत्री हम जाएंगे तो वो चीज़ ध्यान रख सकते हैं। Mother Ganges appears in 3 forms to us. One, as a sacred river. It's a question in itself, which I will not take it right now, maybe later on, is about, why we worship rivers in our country. We call them sacred rivers. अगर देखा जाए, पहले हमारा जितना भी समाज था, जितनी भी जनता या प्रजा थी, वह सब नदी के तट के पास ही बसी हुई थी। not only that, the Ganges, when it comes at Gangotri, उनका अपना ही, not गंगा यमुना की भी बात करें, they all have their own network of rivers which spreads all over the Bharat. अगर हिमालय से देखा जाए तो we have Indus that goes through Pakistan, then we have Yamuna, we have Gangotri, many rivers like this, जो यहाँ इस प्रकार से पहाड़ी इलाके से लेकर इनलैंड पानी लेकर आते हैं, जिसके कारण बाकी सभी जीव जंतु का पालन पोषण होता है। दैट्स द फर्स्ट थिंग, इज अ सेक्रेड रिवर, ये पानी के रूप में अवतरित होती हैं। दूसरा, मदर गैंजेस इज अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज। जितने भी ऋषि मुनि, जितने भी अगर आप देखेंगे ज़्यादातर तीर्थ स्थल रहे हैं वो गंगा या यमुना के तट के पास हैं। गंगा के पास सबसे प्रमुख तीर्थ स्थल क्या है? What is one of the very famous तीर्थ स्थल, holy place next to Ganges? Yes, Navadip, Mayapur. What else? Mayapur only. And what is a very famous तीर्थ स्थल next to Yamuna? Vrindavan. That's it. अभी बाकी तो सोच रहे हो कितने सारे तीर्थ स्थल होंगे, isn't it? Then we have Ganga Sagar, Kapil Muni Ashram, like that. So Ganga also second form is place of pilgrimage. तो कल हम जब वहाँ जाएंगे, so I'm not sure even I'm going to go for the first time. वहाँ पे डुबकी ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे, but at least we should have a mood of reverence and mood of prayer. अगर हम गंगा को उस प्रकार उस एक प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज के समान उनको अप्रोच करते हैं, so we can get spiritual nourishment, we can get spiritual strength. तीसरा, गंगा अवतरित होती हैं तो एक तो हो गया सेक्रेड रिवर, एक हो गया प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज. व्हाट पोटेंशियली कुड बी द थर्ड फॉर्म? एज अ गॉडेस, मदर गैंजेस, जिनकी सवारी क्या है? क्रोकोडाइल. उस प्रकार से अगर आप मायापुर जाएंगे, गंगा तट पे आज गंगा जी का बहुत खूबसूरत मंदिर बना हुआ है वहाँ पर, तो वहाँ पे आप देखेंगे गंगा जी की जो विग्रह है वो उस प्रकार क्रोकोडाइल पर बैठी हुई है. सो गंगा जी अपने इस डिवाइन फॉर्म के रूप में इस धरती पर अवतरित हुई, और उनका विवाह, क्या नाम है अपना, व्हाट्स द नेम, हाँ, शांतनु, शांतनु, राइट? या नो नो, नॉट देवव्रत. देवव्रत इज भीष्म पितामह, शांतनु, एंड देन सत्यवती लेटर ऑन. या शांतनु से विवाह हुआ और फिर उनके पुत्र थे देवव्रत, लाइक दैट. सो इस प्रकार से 3 रूप में मदर गंगा इस धरती पर अवतरित है. सबसे पहले सेक्रेड रिवर, दूसरा प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज, एंड तीसरा एज अ गॉडेस, डिवाइन मदर, जिससे हम प्रार्थना करें तो हमें भक्ति प्राप्त हो सकती है. और ये जो पूरा इलाका है हिमालयों का, ये पूरा जो ये जो एक एरिया है, अगर कहना चाहें इस लोकेशन, ट्रेडिशनली दिस हैड बीन अ प्लेस ऑफ सेजेस. आई डोंट नो, आपने किसी ने देखा आते समय एक जगह पर एक पहाड़ी में ऊपर की तरफ गुफा में शिवलिंग थी. आई डोंट नो इफ एनीवन ऑफ यू सॉ. देयर वाज अ केव राइट अप इन द माउंटेन.
वो पेड़ों से ढका हुआ था और एक प्रकार से बहुत बड़ा केव था और अंदर शिवलिंग था. हाउ मेनी ऑफ यू सॉ दैट? Ah, you missed it. Thoda be alert when you're going through this. You'll find many such things. There was a beautiful cave. So, anyways, point is, this is a place of pilgrimage. This is a place जहाँ पर लोग अपनी अध्यात्म बल बढ़ाने के लिए आते हैं. So, traditionally लोग जब आते थे, जैसे शंकराचार्य, माधवाचार्य, रामानुजाचार्य, आप किसी भी संत का अगर नाम लें, तो ना ही तो कोई एसी गाड़ी में बैठ कर आया, ना ही किसी एसी रूम में रहा, ना ही तो उसको आते उसको गुलाब जामुन के संग गरम गरम चपाती, पनीर की सब्जी, पापड़, चावल ऐसा नहीं मिला. सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ द कंफर्ट ऑफ आवर ऑडियंस. आराम से बस में बैठ कर आओ, फिर आराम से गरम गरम प्रसादम मिले. दिस इज़ नॉट द प्लेस फॉर इट एक्चुअली. तीर्थ धाम ये इसके लिए होता ही नहीं है. तीर्थ धाम का मतलब होता है तपस्या. पर अभी हमारी तपस्या क्या है कि तीर्थ धाम आ जाओ वही काफ़ी है. अभी आप उतना ही आ जाओ वही काफ़ी है. लोग घर से निकलना ही नहीं चाहते. सो माई रिक्वेस्ट इज कि भक्तों ने पूरे तन मन धन से प्रयत्न करा है आपको गरम गरम प्रसादम मिले, पुश बैक सीट वाली बस मिले, पर रोड हमारे हाथों में नहीं है, अकोमोडेशन हमारे हाथों में नहीं है, और हिमालय के मच्छरों का तो पता नहीं, जो भी थोड़ी देर में उनका आतंक फैलने ही वाला होगा. तो एनी सच इनकन्वीनियंसेस शुड बी सीन एज एन अपॉर्चुनिटी टू प्योरीफाई. क्योंकि ये तप भूमि है, ये भोग भूमि नहीं है. यहाँ पे हम कोई इंजॉय करने के लिए नहीं आए हैं. आप कुछ भी कर लें, किसी भी स्थिति में, किसी भी समय में अपने जीवन के, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने कभी तपस्या ना करी हो. कुछ भी पाना हो, तपस्या तो करनी ही पड़ती है, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी. और यहाँ पर हमारे प्रयत्न करने के बाद भी कुछ ना कुछ तो इनकन्वीनियंसेस रहेंगे, बिकॉज दोज आर एक्सटर्नल फोर्सेस. तो जब है इनवॉलंटरी ऑस्टेरिटी जो परफॉर्म अगर हम अच्छे मूड से करें, स्वीकार करते हुए करें, तो ये तप भूमि का जो प्रभाव है वो ऐसा रहेगा कि हमारी चेतना में असर आएगा और प्रगति होगी. देयर वाज अ स्लोगन रिटन वन प्लेस ओवर हियर. आपने देखा G20 के काफ़ी मैसेजेस थे. सो एक मैसेज लिखा हुआ था, दिस इज अ प्लेस फॉर एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस. आई डोंट नो इफ यू सॉ दैट बिलबोर्ड. एक्चुअली दैट्स व्हाट इट इज. लोग यहाँ ऋषि मुनि क्यों आते हैं? इसलिए ताकि उतनी चेतना का विकास हो जाए. ऑफ कोर्स आई विल स्पीक मोर अबाउट चेतना when we take some questions on the Kela story and some messages on that. And the next day after tomorrow, then we have to go where? Tilwada. Rudraprayag again we have to travel. जो again 6-7 घंटे का जर्नी रहेगा उस प्रकार से. Fine, that's a little heads up. So once again, अगर किसी को थोड़ी inconvenience हुआ हो तो उसके लिए माफ़ी. पर माफ़ी मांगने का मतलब नहीं बनता. inconvenience झेलने के लिए तो आए हो यहाँ पर. ये तपोभूमि है. या inconvenience नहीं मिलेगी तो फिर मुझे आपको सॉरी कहना चाहिए. हरे कृष्ण प्रभु, आपने एक पॉइंट बताया था कि गंगा जी आ रहे थे तो उन्होंने 2 शर्त रखी थी. एक बताया आपने, दूसरा मेरे पापों का, मतलब नॉट मेरे पापों का, लोग मेरे पानी में जब स्नान करेंगे तो अपने पाप छोड़ जाएंगे, तो उससे मैं कैसे बचूंगी. तो तब भागीरथी ने कहा कि देखिए माते कि आप इस धरती पे आएंगी तो आपके पानी में, जैसे मैंने कहा गंगा का 3 स्वरूप हैं, तो शुद्ध भक्त भी स्नान करेंगे और वह आपको शुद्ध करेंगे. देखा जाए तो वैसे गंगा का दूषित होने का मतलब नहीं बनता, बट व्हेन शी रेज दिस पॉइंट, तो इसलिए दूसरे प्रश्न के लिए उनको कोई तपस्या नहीं करनी पड़ी. पर पहले प्रश्न के लिए कि मेरा जो इतना तेज भाव रहेगा उसको कौन हैंडल करेगा, इसलिए भागीरथ को शिव जी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करनी पड़ी. सो हाउ मेनी ऑफ यू नॉट नो दिस स्टोरी अबाउट हाउ मदर गैंजेस डिसेंडेड? कितने लोगों को ये कहानी नहीं पता है? हाँ, शर्माओ नहीं, थोड़ा कॉन्फिडेंटली हाथ खड़ा करो ना. ठीक है, 2-3 लोग हैं तो मैं आपको वॉइस नोट छोड़ दूंगा. I mean, we discussed in Mayapur यात्रा whole 2 hours we spoke about Mother Ganges. समय मिलेगा तो देखते हैं. I definitely want to speak about Lord Shiva also because this is the Shiva Bhumi करके, and we just came from Haridwar, that is said to be land of Daksha. Daksha की कैपिटल रही है एक समय पर. So I wanted to speak on that. जब आगे समय मिलेगा we'll see that. Okay, so the how it's going to happen is I told शेखर प्रभु भाई आप थोड़ा पढ़ लीजिए क्या है, कुछ होगी चर्चा, we can do some discussion, and then I had sent some of those who were asking me, we can have questions directly here, and if you want to share your thought, we can share your thoughts, we can have it that way. All right? Okay. Yes. ठीक है, थैंक यू प्रभु जी. हरे कृष्ण. तो प्रभु जी, जब मैं आपके कहने के बाद जब मैं गो थ्रू कर रहा था उसको, तो सबसे पहले रिव्यू कमेंट्स आ रहे थे. तो किसी ने बोला ये प्रोपेगेंडा है, किसी ने कहा कि ये फिक्शन है, किसी ने कहा फैक्ट्स है. तो हम मूवी रिव्यू नहीं करने बैठे यहाँ पे, और ना हम किसी का साइड लेंगे.
बट मैं जानना चाहता हूं कि मेरा मानना है ऐसा कि अगर ये सिर्फ प्रोपोगंडा होता तो आज हम यहाँ बैठ के चर्चा नहीं कर रहे होते। तो क्या ये जो कन्वर्जन चल रहा है भारतवर्ष में, ये जिसको एक एक स्टेट की स्टोरी करके दिखाया गया है, क्या ये सत्य की घटना है या फिर ये काल्पनिक है? विदाउट एनी पक्ष, without any side. हमारी मीटिंग्स में भी इसके ऊपर चर्चा होती है, चल रहा है काफ़ी समय से। रेडिकलाइजेशन जो है वो अपने ही तरफ की बात है, बट आई लाइक टू शेयर वन ऑफ माई एक्सपीरियंस। मैं वेलोर यूनिवर्सिटी में था, विच इज़ इन साउथ इंडिया, और सेकेंड सेमेस्टर I kind of left Hinduism and I was practicing Christianity. So I was not radicalized as per se, जो मुझे बताया गया है इसके अंदर दिखाया गया, which is kind of fact. We'll talk about it, the mindset, why it happens. That's a different thing. But I was in South, so I was also kind of pulled into this Christianity. And why I got pulled into Christianity was my own flaws. मेरा क्या फ्लॉ था, मेरी क्या कमी थी। हम लोग इतने इतने मंदिर में जाते हैं, हमें बताया जाता है सभी देवी देवता हैं, सभी भगवान हैं, पर हमेशा मन में एक प्रश्न आता था, भाई एक भगवान होना चाहिए ना, ये अनेक भगवान क्यों हैं? और जब भी इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता था तो बड़े बूढ़ों से सिर्फ एक ही जवाब आता था, प्रश्न मत उठाओ, वो गुस्सा करेंगे। दिस इज नॉट द राइट क्वेश्चन टू आस्क। परंतु जिस प्रकार की आज समाज में हम पढ़े लिखे हैं, द एजुकेशन दैट वी हैव इज कम्प्लीटली एथियस्टिक, जो आपको पूर्णतः ये ज्ञान सिखाती है कि भगवान है ही नहीं, परंतु हमारे संस्कार हमें सिखाते हैं भगवान है। तो जब ये व्यक्ति बड़ा होता है तो देयर इज अ ह्यूज कॉन्फ्लिक्ट, भगवान है या नहीं है। अब भगवान है तो कौन भगवान है, क्योंकि इतने सारे भगवान हैं। आप अलग अलग मंदिर में जाते हो, हर कोई कहता है ये भगवान सर्वश्रेष्ठ है। उस प्रकार से मैं भी उस प्रकार काफ़ी परेशान था कि व्हाट्स गोइंग ऑन। देन यू गो टू साउथ इंडिया, साउथ इंडिया में अलग कल्चर है, भगवान को पूजने का विधि अलग है, उनके नाम भी अलग हैं। अब वो तो अब पता चला है, जैसे वृंदावन में जाते हैं तो वृंदावन में कृष्ण के अलग अलग मंदिर हैं, तो वहाँ उनको कृष्ण नहीं कहा जाता, राधा मदन मोहन, राधा गोविंद देव, राधा श्याम सुंदर, उनको अलग अलग नामों से उनको कहते हैं और इसे संबोधित किया जाता है। उसी प्रकार से साउथ, वो तो मुझे अब पता चला जाके कि साउथ इंडिया में उसी प्रकार से विष्णु को अलग अलग नामों से संबोधित किया जाता है, पर वो ज्ञान नहीं था, तो मुझे लगा यहाँ पे और भी भगवान है। उस वजह से परेशान हो के तो आई हैड सम क्रिश्चियन फ्रेंड्स एंड दे यूज्ड टू गो टू चर्च एवरी संडे। उन्होंने मुझे बताना शुरू किया, देखो हमारा ग्रंथ इतना छोटा सा, छोटी सी बाइबल थी, मैंने भी पढ़ना शुरू करा। मैंने आज तक भगवद गीता नहीं पढ़ी थी और मैंने 1 महीने के अंदर बाइबल पढ़ डाली, और बिल्कुल सरल सिंपल सी बात, निष्कर्ष में 10 कमांडमेंट्स, और कुछ याद नहीं रखना, 10 कमांडमेंट्स करके। एंड हम हिंदू बैकग्राउंड से आए हैं तो वो ज़्यादातर वैसे भी पालन होता था, ना पालन होने कोई चीज़ नहीं थी। दूसरी चीज़ अट्रैक्टिव क्या थी, जिसके लिए जो हमें टॉन्ट किया जाता था, देखो इस प्रकार से काफ़ी चीज़ों पे चर्चा हुई। वो करके उनके चर्च में जाओ, दे वुड होल हार्टेडली वेलकम यू एंड देयर विल बी अ सर्मन, जो कभी समझ तो नहीं आया, बात अलग है, पर देयर वाज अ सर्मन के बाद they'll give you some supper and the pastor will come and talk to you and there was never a discussion of कि आप आए हो, आप मुझे चंदा दो। You know, when you go to a temple, the pujari would ask कि थोड़ी दक्षिणा दो। There was never a culture like this. You know, you go there, they will talk to you, they will give you some food. So Sunday church service होने के बाद they have a culture, and different church have different culture depending on their financial situation. They give you a bread and a red wine, which is in memory of the last day of Jesus, because that's what the last meal Jesus had. So अलग अलग church में अलग अलग financial situation के हिसाब से उधर. So every Sunday when I started going there, very nicely the pastor will come sit and talk to me and he'll get me a bread and very confidently say, this is what our Jesus had it before sacrificing his life for our cause. You know, there was a lot of emotional appeal. उस प्रकार से वो बात शुरू हुई और उनसे बात करो तो बड़ा अच्छा लगता था। There was never a discussion of give and take ये करके। तो इस प्रकार से मैं स्वयं अपने जीवन में करीबन 6 महीने के लिए मैं पूर्णतः ही क्रिश्चियनिटी को पालन कर रहा था। Fortunately, there was no radicalization at my time, at least with me,
किसी ने ऐसा कुछ नहीं करा था, परंतु 6 महीने के बाद आई माई सेल्फ लेफ्ट इट, क्योंकि जिस व्यक्ति से प्रभावित होकर मैं गया था, मुझे पता चला कि 6 महीने के बाद ही वॉज माई क्लासमेट ओनली. आई गॉट टू नो he pretended to be a man of a good character, but actually he wasn't. He was visiting prostitutes. So that I couldn't tolerate. मैंने कहा यार ये अगर कहता है कि मैं जीसस में विश्वास करता हूँ, मैं हर संडे चर्च में जाता हूँ, every day when he will come to college he will have a Bible in his bag. ब्रेक होता था बाइबल खोल के पढ़ता था. And when I got to know, then I researched about him, then I got to know that yes, actually he goes to prostitutes. So then I said no, this is wrong. Then I left it, and then I went to Auroville. That's a different story. So yes, this happens. और ये अब से नहीं, ये बहुत समय से चलता हुआ आ रहा है. उसकी मानसिकता क्या है? Let's talk about little what is the ideology or what's the psychology behind ऐसा लोग क्यों करते हैं. Let's little bit talk about education. हमारा education system क्या था, वो जानना थोड़ा महत्वपूर्ण है. देखिए, जो वैदिक एजुकेशन या ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम कहा जाए, उसमें 2 प्रकार की शिक्षा प्रणाली रही है. एक कहा जाता है विद्या, दूसरा कहा जाता है शिक्षा. विद्या क्या होती है समझाने से पहले, द्रोणाचार्य को अर्जुन को गुरु कहा जाता है, राइट? दैट इज रॉन्ग. द्रोणाचार्य वाज नॉट अर्जुनस गुरु. वो अर्जुन के शिक्षक थे, शिक्षक, नॉट गुरु. अर्जुन के गुरु कौन थे? कृष्ण. तो प्रश्न बनता है, कृष्ण और द्रोणाचार्य में अंतर क्या है? कृष्ण ने अर्जुन को विद्या दी, द्रोणाचार्य ने अर्जुन को शिक्षा दी. सो हमारे ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम में 2 प्रकार की एजुकेशन प्रणाली रही है, विद्या और शिक्षा. विद्या क्या है? हम कौन है, भगवान कौन है, भगवान के संग संबंध क्या है, शास्त्रों का अध्ययन, वो विद्या रहा है, कल्टिवेशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी. और शिक्षा क्या है, जिसको आप इंग्लिश में कहेंगे वोकेशनल ट्रेनिंग. तो अर्जुन क्षत्रिय थे, उन क्षत्रिय धर्म का पालन करने के लिए, रक्षा करने के लिए उनको शस्त्र चलाना सिखाया गया द्रोणाचार्य के द्वारा, तो वह उनके शिक्षक हुए. तो इस प्रकार से जो हमारा एजुकेशन सिस्टम रहता था, इट वाज अ ब्लेंड ऑफ बोथ विद्या एंड शिक्षा. परंतु जैसे ये मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ, दिस मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम इज नॉट वेरी ओल्ड, दिस इज जस्ट इट स्टार्टेड पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन. इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद एजुकेशन का क्या स्थिति हुआ? ओके, लेट्स गो बैक लिटिल बिट मोर इन द हिस्ट्री. एजुकेशन पहले कैसी होती थी? और फर्स्ट ऑफ ऑल, इवन बिफोर वी स्टार्ट अबाउट एजुकेशन, एजुकेशन की आवश्यकता क्यों है? लेट्स गो इन द वेरी फाउंडेशन ऑफ इट. देखिए, जब किसी भी मनुष्य का जन्म होता है, उसकी चेतना का स्तर क्या होता है? उसकी चेतना का स्तर पशु के समान होता है. यस, उसको कुछ नहीं पता होता है सफाई क्या है, गंदगी क्या है. उसको ये नहीं पता था क्या खाना है, नहीं खाना है. हाँ या ना? छोटा सा बच्चा, he doesn't know how to clean himself. छोटे से बच्चे को ये नहीं पता होता कि क्या खाना है, नहीं खाना है. जहां पर भी हाथ पड़ता है वो मुंह में खा लेता, मुंह में डाल लेता है. करेक्ट? दैट इज एन एनिमल कॉन्शियसनेस. तो प्रश्न बनता है, उस व्यक्ति का चेतना का विकास कैसे किया जाता है? उसके लिए देयर वाज अ रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस. जो व्यक्ति को क्लेanलीनेस, कुछ ना कुछ शिक्षा प्रणाली दी जाती थी. हमारे कल्चर में, अगर भारतीय कल्चर की बात करी जाए, इतिहास से देखा जाए, तो वो वैदिक संस्कृति रही है, जहाँ पे विद्या और शिक्षा दी जाती थी. परंतु कलयुग आने के कारण जैसे जैसे प्रभाव पड़ा और ये वैदिक संस्कृति का नाश होना शुरू हुआ, तो इसलिए अलग अलग जगह पे अलग अलग रिलीजियस इंस्टीट्यूशन डेवलप किए गए. फॉर एन एग्जाम्पल, इन वन ऑफ द अब्राहमिक रिलीजन ट्रेडिशन कहा जाता है, वन शुड नॉट हैव सेक्स विद हिज मदर एंड सिस्टर. What does it indicate about the consciousness? जो प्रजा है उसकी चेतना क्या होगी? पशु के समान होगी, नहीं होगी? उस पशु चेतना को से विकसित करने के लिए मनुष्य को कहा गया है, डू नॉट एंगेज विद योर मदर एंड वाइफ, मदर एंड सिस्टर, लाइक दैट. तो पहले ये मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम के आने से पहले सारी शिक्षा प्रणाली ये रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के हैंड में थी. वो पहले हुआ करता था वैदिक एजुकेशन, जो जब धीरे धीरे वो समाप्त होने लगा, तो फिर मैन मेड रिलीजन्स केम इनटू एग्जिस्टेंस और सारी शिक्षा वहां पे होती थी. लेट मी गिव यू स्टैटिस्टिक्स. 1835 इंडिया में या भारत में उस समय 5 लाख गुरुकुल हुआ करते थे. 5 लाख गुरुकुल, 5 लाख मतलब क्या है? हर गांव में अपना ही, हर टाउन में अपना ही एक स्कूल होता था. कोई बच्चा बाहर नहीं जाता था, वहीं पे उसको शिक्षा, विद्या शिक्षा दोनों प्राप्त होती थी.
उस समय यूनाइटेड किंगडम विच वॉज एक्चुअली द कैपिटल ऑफ द होल वर्ल्ड, जो उसने अफ्रीका, अमेरिका, सब जगह, अमेरिका किसने स्थापित किया है? पीपल हु वेंट फ्रॉम द ब्रिटेन, द फ्रांस एंड द इटली, दे वर द वन. सो यूके वॉज द कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड. तो यूके सबसे एडवांस था. तो यूके में 1835 में जब भारत में 5 लाख स्कूल थे, तो यूके में केवल 75,000 स्कूल थे. नौ 75,000 स्कूल में कौन एडमिशन लेता था? जो अच्छे खासे मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास के लोग के बच्चे होते थे. अ पुअर कुड नॉट अफोर्ड. आप में से कितने लोगों ने इस्कॉन के संडे स्कूल का नाम सुना है? हाथ खड़ा करिए. दिस इज नॉट वैदिक कल्चर. संडे स्कूल का कॉन्सेप्ट ब्रिटिश से आया है, ब्रिटेन से आया है. तो 1835 या उस समय में जो पिछले वर्ग के लोग होते थे, वो फ्रॉम द फाइनेंशियल वीकर सोसाइटी, उनके बच्चों के लिए एजुकेशन नहीं थी. उनके बच्चों के लिए चर्च में हर संडे को संडे स्कूल लगता था, 2 घंटे का, जहां उनको बाइबल सिखाया जाता था. एंड दैट इज अ कॉन्सेप्ट नाउ वी हैव टेकन अप हियर, जहां हम बच्चों को वैदिक एजुकेशन के नाम पे संडे स्कूल करते हैं. इसलिए आई डोंट कॉल संडे स्कूल, इफ यू हैव सीन इन इंजवाड़ी, आई कॉल इट भक्ति स्कूल. वाई शुड आई कॉल इट संडे स्कूल? इसका मतलब हम ब्रिटेन से उनका पिछड़ा हुआ आइडिया चुरा कर अब वैदिक एजुकेशन को संडे स्कूल के नाम पे दे रहे हैं. नो, वी आर भक्ति स्कूल. जो कहा जाता है, इतिहास में बताया जाता है, जब ब्रिटिशर्स केम हियर, तो उन्होंने जब यहाँ का एजुकेशन मॉडल स्टडी करा, तो उनको पता चला कि यहाँ पे शिक्षा फ्री ऑफ कॉस्ट है. यहाँ पे जितने भी शिक्षक हैं, वो शिक्षा देने के लिए कोई पैसा नहीं लेते थे. सो टीचर्स वो वर्किंग फ्री ऑफ कॉस्ट, स्टूडेंट्स वर नॉट पेइंग एनी फीस. उस प्रकार से 5 लाख स्कूल यहाँ चल रहे थे. तो उस समय करीबन 1805 से लेकर 1827 तक का स्टैटिस्टिक्स है, करीबन 20 से 22 साल तक के लिए यूके में इस प्रकार की फ्री एजुकेशन अटेम्प्ट करी गई. और ये 20 साल से ज़्यादा नहीं चल पाई. क्यों? दे couldn't find students, they couldn't find teachers. They couldn't find teachers who will work free of cost. एंड ऐसे सेटअप में उनको बच्चे भी नहीं मिल पाए. तो कहने का तात्पर्य है, हमारा एक एजुकेशन सिस्टम हुआ करता था विच वॉज एट इट्स पीक, जहाँ लोग जिससे आके सीखा करते थे. धीरे धीरे वो एजुकेशन सिस्टम का नाश हो गया. उस समय बच्चों को क्या सिखाया जाता था विद्या के नाम पर? महाभारत, हाउ टू लिव वन लाइफ, पीपल लर्न फ्रॉम, चाइल्ड वुड लर्न फ्रॉम महाभारत. रामायण से शिक्षा मिलती थी हाउ टू लीड वन लाइफ. और श्रीमद् भागवतम सिखाया जाता हाउ टू लव. ये 3 ग्रंथ सिखाए जाते थे. आज लोग किसके बारे में प्रश्न उठाते हैं? लोग प्रश्न उठाते हैं राम को लेकर. राम ने सीता को क्यों त्यागा? जब राम का सीता से मिलन हुआ, जब सीता को उन्होंने रावण से बचाया, तो फिर अग्नि परीक्षा के लिए क्यों बोला? आज हमें यही प्रश्नों का जवाब नहीं पता, तो आप सोच सकते हैं हमारी संस्कृति की कितनी दुर्गति हो गई है. इन्हीं प्रश्नों को लेकर हमें चैलेंज किया जाता है कि आपके धर्म में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, क्योंकि हमने पढ़े ही नहीं शास्त्र को. हमें भगवत गीता नहीं पता, हमें महाभारत नहीं पता. इन चीज़ों का फ़ायदा लेकर, या ये कहिए हमने अज्ञानता का सहारा लेकर अपनी संस्कृति को गंवा दिया है. और धीरे धीरे करके इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम पर ये मॉडर्न एजुकेशन इंट्रोड्यूस करी गई. व्हाट इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉडर्न एजुकेशन? आपसे मैं 10 या 15 साल, लेट्स टॉक अबाउट व्हेन आई वाज इन अ 10th ग्रेड, लेट्स से 20, 25 और 30 ईयर्स अगो, जो भी पहले की बात करो. हम जब बड़े हो रहे थे, हमें सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव दिया गया था. अगर आप लड़का हो तो आपके पास 2 ही प्रोफेशन है, डॉक्टर और इंजीनियर. हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? Yes or no? I don't know what was for Mataji's, but if you are a boy, you had only 2 professions, doctor or engineer. So education is supposed to become a product industry. So क्या प्रोड्यूस होता है मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम से? केवल शूद्रस. इट्स अ लेबर फोर्स. इसलिए एजुकेशन सिस्टम को इतना प्रचार किया. दूसरी चीज जो हमने बात करी, पहले सारी की सारी एजुकेशन रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के द्वारा कंट्रोल होती थी. तो जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए, दे डिस्ट्रॉयड गुरुकुल. 1872 दे पास्ड डिक्री और अ लॉ जिसके अनुसार कोई भी अगर गुरुकुल से ग्रेजुएट होगा, उसको जॉब मिलेगी ही नहीं. बाय 1905 वी हार्डली हैड 500 गुरुकुल्स रिमेनिंग इन इंडिया. बाय 1905 1872 में डिग्री पास करी थी, 1905 तक मुश्किल से 500 गुरुकुल बचे थे. अब उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया? मॉडर्न एजुकेशन इंट्रोड्यूस करा. साथ ही साथ उन्होंने क्रिश्चियन चर्च का जो एजुकेशन सिस्टम था वो भी इंट्रोड्यूस करा. आपने प्रभुपाद की जीवन शैली को पढ़ा होगा, तो प्रभुपाद स्वयं बताते हैं कैसे उनके टीचर बताया करते थे कि आपके धर्म में ये परेशानी है, वो परेशानी है. जब आप बड़े ही बचपन से ये सुन के हुए हैं, आप कहें ये परेशानी है, वो परेशानी है, तो व्यक्ति को ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है. वह स्वयं ही अपने आप परिवर्तन कर लेगा. नहीं करेगा
तो कम से कम इसको जो जरूर त्याग देगा, इससे कुछ लेना देना नहीं रहेगा। मुझे पता है जब मैं अमेरिका में पढ़ता था, जब मैं भक्तों से जुड़ा था, हम लोग जो हरिनाम संकीर्तन के लिए जाते थे, सब लोग संकीर्तन में भाग लेने आते थे, परंतु एक ही प्रजाति थी जो हमें देख के भाग जाती थी, भारतीय। The moment any Indian on the street would see us coming and doing संकीर्तन, they would run away. अरे कहाँ से आ गए? जितने भी अमेरिकन वेस्टर्न बॉडी लोग होते थे, they love singing and dancing, they'll come and dance. तो ये किस प्रकार के लोग हैं? Maybe they have not converted, but they have left because they think ये बिल्कुल गलत है। क्या सिखाया जाता है? माइथोलॉजी। आप कोई भी किताब उठा के देख लो, रामायण इज माइथोलॉजी, महाभारत इज एथोलॉजी। I mean, if you talk about Abrahamic faith for that reason, the foundation is a lie. बाइबल के अनुसार इस सृष्टि का निर्माण 24 सितंबर को 11 बजे हुआ, 5000 साल, 5004 years ago, on 24 September at 11 o'clock इस सृष्टि का निर्माण हुआ। मेरा प्रश्न है, 10 बजे भगवान क्या कर रहे थे फिर? मतलब क्या है? 11 बजे निर्माण हुआ तो 10 बजे क्या कर रहे थे? आलू का पराठा खा रहे थे? मतलब what's the meaning of it? Now, according to the archaeological survey, we have artifacts going to billions of years. Now, from same Abrahamic tradition, another tradition which has come up, they say their holy land of Mecca, जब थे था, according to archaeological survey, जो वो quote करते हैं, that land never existed only. There was no structure, there was no construction, it was a complete desert. This is archaeological survey. तो आपका सारा basis, foundation ही लाई है, उसको हमें तथ्य के रूप में समझाया जाता है, और हमारा जो तथ्य है उसको हमें जोर जोर से बोला जाता है माइथोलॉजी। अगर सोचिए, अगर उस बैकग्राउंड से हम लोग आए हैं, उसको कौन स्वीकारेगा? एंड दैट्स द रीजन आप ये रेडिकलाइजेशन ऑल दैट्स आई मीन दैट हैज अनदर ऑब्जेक्टिव्स, विल टॉक अबाउट इट, बट आई डोंट नो इफ आई रियली आंसर योर क्वेश्चन और आई आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। नहीं ब्रो, answered it, but I have a curiosity now, abhi और curiosity, especially I want to all those questions that you answered. So जैसे कि आपने बोला कि सबसे पहले उस मूवी में भी दिखाया गया कि सबसे पहले इश्यूज कब स्टार्ट हुए, जब वो शायद 3 फ्रेंड्स थी और उन्होंने प्रसादम मंगवाया या फूड मंगाया बाहर से, और 2 ने ऑफर किया अपने अपने भगवान को। उनको पता है एक को अल्लाह, एक का कृष्ण है, इसको पता ही नहीं बेचारी को, दूसरी वाली को जो हिंदू है, कि कौन है। Even I had that experience. I was visiting Washington DC. So when I went there, so in campus they have this called as church club. And उनका क्या रहता है? Any Indian when they come, not only for Indian, maybe for others also, but they have this called as Friends of India भारत करके. So ये these are clubs run by Christians. So जब आप वहाँ पहुँचते हैं तो आपकी मदद करते हैं, आपको फर्नीचर, सेकेंड हैंड फर्नीचर दिलाने में। एंड देन दे हैव दिस एनुअल ट्रिप। So 2007 I reached, 2008 winters, March I went for an annual trip with a church community. और हम लोग गए थे वॉशिंगटन डीसी। हम वॉशिंगटन डीसी में गए थे तो उनका क्या था, हम लोग कुछ we were around 40 international students outside of America. तो हर कोई व्यक्ति को एक एक फैमिली के संग रखा गया था। So I and along with me one Chinese national, 2 of us and I believe one of my Indian friend also, 3 of us, हम वॉशिंगटन डीसी में एक बहुत रईस आदमी के घर पे रह रहे थे। You see this mountain? He kind of mountain. उसका किला था एक प्रकार से। And very very rich person. He had hundreds of companies like that. हम लोग उसके घर में रुके थे। I mean everything was ultra modern. जो चीजें आज हमें मिल रही हैं उसके पास सब कुछ था। There was everything was like you have this, you know, Alexa, you speak. This is 2008. He had that system. It was remote control or voice control. He was an inventor. Everything. उसके घर में कोई दीवार नहीं थी, उसके घर में सिर्फ शीशा था, not शीशा, glass. There was no wall. Imagine taking bath in the morning. there was no brick, no cement. It was all glass. But thank God, it was all nature outside. You don't mind taking a bath like this. उसका जो it was a huge mansion kind of a thing. और कैसे डिजाइन करा था उसने, जब सूर्य उदय होता था तो द सूर्य की किरणें will fall from this side and by the time sunset will happen, the sun will walk like this across his house and all through his house, in the middle of the house you'll get a natural light like that. Anyways, now imagine you go into such a house, such a rich person, everything,
वी रीच समवेयर इन द अराउंड 5 o'clock. नाउ 8 बजे हम डिनर के लिए बैठते हैं. टू माई अटर शॉक एंड आई कैनॉट फॉरगेट इट, हम लोग डिनर टेबल के लिए बैठते हैं and the wife is cooking the food, which was itself a shocking for me. Then suddenly the wife, before putting the bread on the table, she said, hey, wait a second, we cannot eat. मुझे पता नहीं क्या हुआ. She said, our son and daughter is missing. The father asked, where are they? They have not yet returned. We did not eat food for the next 45 minutes. बोले जब तक बच्चे घर पे नहीं आएंगे हम लोग स्वीकारेंगे नहीं. So then they called their son was somewhere else. They were grown up boys and girl. Finally they came. So we were in the meantime talking about it, visiting this another place he was showing. 45 minutes later on, again mother heated up everything. She brought on the table. Now all of us sitting on a big dining table. ठीक है, खाना शुरू करो. I just about to take a bite. So prayer, किसको prayer? Everyone folded their hand and they offered prayer. And I'll tell you, I was thinking, क्या culture है? This is my experience. I like, what a culture. मुझे लगा था कि हमारे ही जगह पे कल्चर रहता है जहां लोग बैठ के साथ में खाते हैं. बट आई ऑल्सो नेवर रिमेंबर कि माई मदर और फादर से कि पहले खाने से पहले भगवान को याद रखो. हाँ, हमारे यहाँ कुछ भी बाहर से कुछ आता था तो माँ जरूर भगवान को पहले ऑफर करके हमें खिलाती थी. But when she's cooking every day in the house, she herself will offer, but she would never tell us to offer a prayer. मैंने कहा हम वॉशिंगटन डीसी के one of the richest person we are sitting in the house और उसके घर में बैठकर वो लोग जो इतने रईस हैं प्रार्थना कर रहे हैं. मैंने कहा यार क्रिश्चियनिटी में बहुत बल है. It's very powerful. So yeah, I mean again the reason is just, if I would say, we have lost our culture and some of them have kept their culture. And why we have lost our culture? Because we have had a foreign rule for quite a long time. It's interesting to see, if we talk about Egypt, became Islamic nation less than 100 years. Talk about Mesopotamia, 125 years. Persia, 25 years. Like there's a different statistics. When in this much time, the whole country changed. You talk about Indonesia, Malaysia, what is all this saying? It was all Sanatan Dharma. We don't have the exact number there, how many years it took it. The question comes, why we never became like that? Because somewhere some fine thread of Vedic education remained. कहीं ना कहीं कुछ गुरुकुल चलता रहा, जिस प्रकार कोई ना कोई परंपरा चलती रही, जिसकी वजह से हम लोग नहीं हो पाए. परंतु जब से मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम आया ना, उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया है. आज आप एक ब्राह्मण से भी बात करो, उसको अपने पे इतना एक वो घमंड रहता है कि मैं ब्राह्मण हूं, आप मुझे क्या बताओगे, मुझे सब पता है. And that's what I believe was shown in that. I was told that there was a Brahmin daughter to whom they talked about it. Nobody is educated. Srila Prabhupada had to struggle so much in this land to speak about Krishna consciousness. Nobody was willing to hear it. तभी शिला प्रभुपाद को बाहर जाना पड़ा विदेश में. क्यों? सब लोग कह रहे थे आवश्यकता नहीं, हमें सब पता है. And what was an objective for everyone? Everyone had the same objective, either you're Brahmana or Vaishya. सबका सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव था, पैसा कमाना. So yes, the Westerns, the Britishers did leave us, but they left a strong impression. हम उनके जैसा ही बनना चाहते थे, इसलिए हम लोग स्पिरिचुअलिटी को स्वीकार नहीं कर पाए. And look at the situation today. जिनके बच्चे हैं या जो टीनेज ईयर्स में थे, how you can relate to it now. Now maybe you are in Krishna consciousness, but उस समय क्या स्थिति थी हमारी, हमें क्या समझता है हिंदू धर्म के बारे में. Sanatan Dharma, the focus is evolution of consciousness. The focus is not what path you take. इसलिए हमारे यहाँ कुछ पुश एंड पुल नहीं होता. एक ही परिवार के अंदर शिव भक्त भी मिल जाएगा, पार्वती भक्त भी मिल जाएगा, गणेश भक्त भी मिल जाएगा, साथ ही साथ राम भक्त भी मिल जाएगा, कृष्ण भक्त भी मिल जाएगा. हाँ या ना? Nobody has any. हफ्ते भर फास्टिंग चलती है. सोमवार को माता का फास्ट, मंगलवार को हनुमान जी का फास्ट, बुधवार को गणेश जी का फास्ट, समथिंग फास्टिंग है, नो प्रॉब्लम. व्हाई? बिकॉज ट्रेडिशनली हमारा ट्रेनिंग किस प्रकार से रहा है. 3 चीजें रही हैं हमारे जीवन में जो हमें ट्रेनिंग दी गई है संस्कृति के अनुसार. हमारी चेतना पशु के समान रही है, जिसको अनमय चेतना कहते हैं.
हमें जो एजुकेशन के माध्यम से मनुष्य की चेतना को प्राप्त करना है और विद्या के माध्यम से दिव्य चेतना को प्राप्त करना है। और दिव्य चेतना को प्राप्त करने के लिए अलग अलग मार्ग रहे हैं। एक पर्सनलिस्ट का मार्ग रहा है जो हमारा मार्ग है, एक इम्पर्सनलिज्म का मार्ग रहा है जहाँ भगवान को निरंकार माना जाता है और उसमें अपनी वेराइटीज रही हैं अकॉर्डिंग टू द मोड्स ऑफ मेटल नेचर। कोई सत्व गुण में रहा है विष्णु की आराधना करेगा, कोई रजोगुण में रहा है तो शिव या ब्रह्मा की आराधना करेगा, कोई तमोगुण में रहा है तो काली, मदर काली, राइट, काली और भैरवी की पूजा करेगा। उस प्रकार से that had been the culture and that has, परंतु एजुकेशन ज्ञान ना होने के कारण लोग भ्रमित हो जाते हैं। We have to go out, it's our duty and responsibility जाके लोगों के अंदर इस प्रकार के ज्ञान को बांटना, अदरवाइज प्रॉब्लम्स विल कंटिन्यू लाइक दैट। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चंस लेते हैं जो उस मूवी में रेस किए गए। तो शॉर्ट्स में जानना चाहेंगे सबके आंसर, देखते हैं कितना हो पाता है। तो पहला क्वेश्चन ये जो फिर से हमने शुरू करा कि इतने देवी देवता क्यों? वेरी नाइस क्वेश्चन। हमारी संस्कृति के अनुसार हर शक्ति के पीछे एक शक्तिमान होता है। जो ये गंगा नदी है, गंगा नदी के पीछे एक शक्तिमान है, शक्ति देवी है जिसका नाम है माता गंगा। उस प्रकार से सूर्य जो है, सूर्य के भी एक शक्तिमान है, सूर्य देवता। सो दैट्स एन अंडरस्टैंडिंग कि आपके यहाँ शक्ति नहीं हो सकती जब तक कि उसके पीछे शक्तिमान ना हो। दूसरी चीज जो हम समझ सकते हैं अगर ये भी ना समझें कि अगर इस भारत भूमि जो बहुत छोटा सा प्रांत रह गया एक प्रकार से देखा जाए, उसको मैनेज करने के लिए, एडमिनिस्टर करने के लिए लाखों लाखों की संख्या में अलग अलग प्रकार की हायरार्की में एडमिनिस्ट्रेशन रहता है, राइट। मेयर होता है, उसके बाद मेयर के अंदर भी अलग विभाजन होता है, फिर आपका नगर पालिका होता है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। देन यू हैव स्टेट मिनिस्ट्री, देन यू हैव नेशनल सेंट्रल मिनिस्ट्री। सोचिए केवल एक छोटे से देश को संभाल के रखने के लिए उसमें भी आप क्या संभाल के रख रहे हो? सारा बर्बादी कर रहे हो, पानी को दूषित कर रहे हो, हवा को दूषित कर रहे हो। सब बर्बाद करने के लिए इतनी मिनिस्ट्री लगती है तो उस बर्बादी से बचाने के लिए कितनी मिनिस्ट्री लगती होगी? सो फॉर दैट वी हैव दैट करके, यू नो द वर्ड सरपंच, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सरपंच? सरपंच, पंच मीन्स 5, सरपंच इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ 5 देवतास। सो ट्रेडिशनली अगर समाज में कोई भी निर्णय लिया जाता था तो इन 5 जो एक अपॉइंटेड लोग होते थे उनके डिस्कशन के बिना निर्णय नहीं लिया जाता था। और निर्णय किस प्रकार से होता था? सबसे पहले हमें भगवान के हित का सोचना, समाज के हित का सोचना, परिवार के हित का सोचना, फिर अंत में व्यक्ति अपने स्वार्थ के बारे में सोचता था। उस प्रकार से निर्णय लिया जाता था। परंतु क्योंकि अभी आज उल्टा हो गया तो व्यक्ति सबसे पहले सर्वप्रथम अपने स्वार्थ के बारे में सोचता है। सो दिस ऑल थिंग इज जस्ट अ लैक ऑफ एजुकेशन, जहाँ हमें इस चीज़ का एहसास नहीं है कि कैसे ये जो अलग अलग देवी देवताएं हैं, देर एक्चुअली एडमिनिस्ट्रेटिव हेड्स ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। अदरवाइज तो बेचारे भगवान ही भागते रहेंगे ना हर जगह, यू नो। सूर्य को भी संभालो, चंद्रमा को भी संभालो। इमेजिन फॉर दिस यात्रा, लेट्स से आई हैव इनवाइटेड ऑल ऑफ यू दिस यात्रा। सो आज के कल्चर के या ब्राह्मिक फेथ के अनुसार क्या है? सिर्फ एक भगवान है। अगर ऐसा है तो इसके अनुसार तो मतलब पूरी यात्रा तो मैं ही मैनेज कर रहा हूँ। आपके प्रसादम का भी ध्यान मुझे रखना है, बस का भी ध्यान मुझे रखना है, आपके अकोमोडेशन को ध्यान रखना है। डज इट एवर हैपन लाइक दिस? आप कंपनी में काम करते हो, इज नॉट द CEO इज कमिंग एंड गिविंग यू सैलरी। It's a whole hierarchy, isn't it? There is a whole delegation of responsibility. Yes, CEO is the one who decides, and then there is a delegation. उसी प्रकार से पूरी सृष्टि डेलीगेशन के अनुसार चलती है। It's not that difficult to understand. That's the point about it. देवी देवता अनेक हैं, पर CEO, the supreme controller, supreme enjoyer, and supreme owner. That's actually CEO is one. अब ये शिव भूमि है, तपोभूमि है, तो एक क्वेश्चन उस मूवी में ये भी उठाया गया था कि शिव जी भगवान कैसे हो गए? वो तो अपनी पत्नी के देहांत होने पे जब सती माता और यज्ञ कुंड में समा गई थी तो शिव जी काफ़ी दुखी और विलाप करते हुए फिर वो घूमते रहे। और ये कहा जाता है कि सती के काफ़ी अंश रहे भारत में जो शक्तिपीठ है, उसको कैसे समझा जाए? देखिए ये कहाँ इश्यू आता है इस चीज़ को समझने के लिए। जो लोग कहते हैं भगवान का स्वरूप नहीं है, भगवान निरंकार है, भगवान केवल शक्तिमान है,
तो जब ये दृष्टिकोण होता है तो आप ये समझ ही नहीं सकते कि शक्तिमान का कोई भाव भी होता है, इमोशंस भी होता है, रिलेशनशिप्स भी होता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अगेन अब्राहमिक ट्रेडिशंस के बारे में बात करो, दे डोंट हैव एनी पिक्चर ऑफ द लॉर्ड, यू कैनॉट ड्रॉ. उनके कोई दोस्त हैं, उनके कोई माता पिता हैं, उनके कोई सगे संबंधी हैं, दैट्स ऑल टुगेदर डिफरेंट कॉन्सेप्शन. उसको हमारी वैदिक संस्कृति के अनुसार ब्रह्मन रियलाइजेशन कहा जाता है. ब्रह्मन रियलाइजेशन के अनुसार जहाँ भगवान की सिर्फ आपको शक्ति का एहसास होता है, पर शक्तिमान का एहसास नहीं है. जब शक्तिमान का एहसास होता है तो एक शक्ति का एहसास होना ये पहला द्वार है. और भगवान का अंतिम रियलाइजेशन का है जहाँ भगवान के संग आप प्रेममय संबंध बना सकते हो. जहाँ प्रेम होगा वहाँ इमोशंस होंगे, जहाँ इमोशंस होंगे जहाँ पे कभी आप हंसोगे, कभी रोगे, कभी भय रहेगा, कभी उल्लास रहेगा. तो इस चीज का वो ज्ञान नहीं है और उस चीज को स्वीकारना ही नहीं चाहते कि भगवान भी हंस सकते हैं. अबे तू हंस सकता तो भगवान क्यों नहीं हंस सकते? When you cry, why can't he cry? So how are you crying? How are you smiling? मतलब you can get married, you can have your mother, father, you can have your family, you can have your friends. You are depriving him of everything. No, उसके पास कुछ नहीं होना चाहिए. So actually the whole mindset behind it, Srila Prabhupada addresses. Mindset क्या है? यह व्यक्ति लोगों का शोषण करके स्वयं को भगवान बनाना चाहता है. And you look at this tradition, it had been only on the tradition of exploitation. जहाँ आप लोगों को अंधविश्वास के ऊपर उनको शोषण करते करते अपनी प्रगति करते रहे हो. और अंत में ये कहना, I am the gateway to that supreme Lord. मेरे द्वारा ही आप समझ सकते हो. It's very simple thing. So इसका मतलब जब भगवान श्री कृष्ण यहाँ थे तो थे ही नहीं, क्योंकि यहाँ कृष्ण धरती पे अवतरित हुए तो भगवान नहीं हो सकते. अगर ऐसा संस्कृति और ज्ञान के अनुसार पुरुष केवल भगवान है, शक्तिमान हम सब उनकी शक्ति हैं, और उस शक्ति के संग शक्तिमान किसी भी प्रकार का संबंध बना सकते हैं. पहली चीज. दूसरी चीज, यहाँ पे शक्तिमान या भगवान श्री कृष्ण ने किसी के संग जोर जबरदस्ती नहीं करी थी. जो 16,100 रानियां थी उनकी ही स्वयं इच्छा थी कि वह भगवान श्री कृष्ण से विवाह करें. आप ये सोचिए कि भगवान ये कहिए कि श्री कृष्ण ने अपनी भगवता किस प्रकार से दिखाई. आज एक व्यक्ति, पहले जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, राइट? नाना नानी, नॉट नाना नानी, दादा दादी, फिर चाचा जी ताऊ जी साथ में रहा करते थे. आज जॉइंट फैमिली क्या है? अगर पति पत्नी साथ में रहे तो ये आपके समाज की प्रगति हो गई है. तो आज अगर समाज इस स्थिति पे पहुंच गया है तो वो ये समझ नहीं सकता कि यार मैं 50 लाख कमाता हुआ भी एक पत्नी 2 बच्चों को मेंटेन नहीं कर पा रहा. तो एक व्यक्ति जिसको तुमने पहले ही व्यक्ति घोषित कर दिया है, वो व्यक्ति 16,108 साथ में साथ हरे के संग 10 बच्चे कैसे मेंटेन कर सकता है? इसलिए कहता है माइथोलॉजी. ऊपर से कहा गया है सबके पास 16,108 रानियों के पास अपने अपने महल थे. यहाँ बेचारा 3 BHK ले ले तो अगले 3 जनरेशन तक EMI भरता रहता है. तो वो एक वास्तविक नहीं लगता, तो उसको बहुत द्वेष होता है, ग्लानी होती है, मेरे संग ऐसा, उसके संग वैसा. सो ये मेन पॉइंट इज एन एनवी. इसलिए भगवान श्री कृष्ण सबसे पहले ज्ञान भगवद गीता में क्या देते हैं, ये कहिए हमारी वैदिक संस्कृति का सबसे पहले या मूल ज्ञान क्या है, ये समझना आप शरीर नहीं आत्मा है. जब हरे कृष्ण प्रभु जी, एक क्वेश्चन है जो हमेशा हर्ट करता है कि आपने कहा कि जो ब्राह्मण है हम उनको दान देना चाहिए, दक्षिणा देनी चाहिए, पर जो बाय बर्थ अभी ब्राह्मण है वही मांस खा रहे हैं, वही लिकर या जो भी सेवन कर रहे हैं, अब उनके साथ में बैठते हैं तो हमें शर्म आती है कि हम कुछ चीज़ों का पालन करते हैं जो वो नहीं कर रहे हैं. और जब बात आती है उनको दान देने की तो वो दान नहीं तो फीस मांगते हैं हमसे. तो इस ऐसे वक्त होता ये है कि इनको दान देने से अच्छा है कि दान देना ही छोड़ दो. करेक्ट. सी अगेन, इसलिए मैंने आप लोग को थोड़ा एजुकेशन के इतिहास के बारे में बताया. हमारी स्थिति भी कैसी थी उसके बारे में भी हमने चर्चा करा. माय टेक इज, आप उनके अंदर गलतियां मत ढूंढो, बल्कि ये समझिए कि उनकी परिस्थिति क्या रही है. जैसे कि आप किसी मंदिर में जाते हैं तो जो ऐतिहासिक मंदिर रहे हैं वहाँ पे बहुत जोर जबरदस्ती होती है कई बार दक्षिणा के लिए, है ना. और कई बार जब बाहर निकलते तो कहते हैं अरे क्या है, हम दोबारा नहीं आएंगे यहाँ. ये ब्राह्मण पीछे पड़ जाते हैं.
All of us, how many of you have that experience? And you came back and said, I'm not coming back here. I also had that experience. But जब मुझे उनका background समझ आया, then I understood, you know what else can you do? पहले पूरा समाज मंदिर के इर्द गिर्द रहता था. पहले राजा जो होता था वह ब्राह्मणों का पालन पोषण किया करता था. मंदिर की अपनी जमीन, आज भी जितने ऐतिहासिक मंदिर है उनकी जमीन है, उस मनी से, जमीन से जितना अनाज आता था उसमें से कुछ परसेंटेज वो ब्राह्मणों के लिए जाता था. तो जब उस व्यक्ति का खाना पीना, एट द एंड ऑफ द डे आप भगवान का नाम तभी ले सकते हैं जब आपका खाना पीना, जब आपका पेट भरा है. ऐसे बहुत ही कम लोग होंगे जो शायद आपको इस तपोभूमि में मिल जाएंगे, जो सब कुछ छोड़कर जंगलों में, घनी जंगलों में किसी गुफा में बैठे हुए दिन रात तपस्या कर रहे हैं. ऐसे हर कोई नहीं हो सकता. अल्टीमेटली एवरीवन हैज टू ईट एंड सर्वाइव ऑनसेल्फ. जब वो भी सर्वाइवल की भी बात खत्म हो जाए तो व्यक्ति क्या करेगा? तो उस प्रकार से वो एक संस्कृति तोड़ी जा चुकी है, और तोड़ने के कारण जब लोगों के परिवार के लिए कुछ खाने पीने के लिए ना बचा, वो एक वैसी स्थिति बन गई थी. और धीरे धीरे जब गुरुकुल का ज्ञान ही खत्म हो गया, गुरुकुल शिक्षा प्रणाली ही समाप्त हो गई, तो आपके ब्राह्मण कहाँ से पढ़ सीख के आए हैं? इधर उधर से थोड़े बहुत से ग्रंथ सीख कर आ गए हैं, और वो लोग कितना मानते हैं उसको? They are not been properly trained because they are trained by शिक्षक, not गुरु. आज आप गुरुकुल की भी बात करोगे तो कौन गुरु है? शिक्षक है. और गुरुकुल में भी उनको भी सैलरी मिलती है. जहां जिस व्यक्ति को सैलरी मिल जाती है वो गुरु कभी नहीं कहला सकता, उसको शिक्षक कहा जाता है. अगर द्रोणाचार्य ने पांडवों को, कौरवों को कुछ अध्यात्म शिक्षा भी दी हो तो तब भी उसको गुरु नहीं कह सकते. क्यों? क्योंकि वो सैलरी लेता था, तो उसको शिक्षक ही कहेंगे. तो अगर आज आपको अपने शास्त्रों का ज्ञान अगर शिक्षक से मिला है तो आप क्या एक्सपेक्ट करोगे? यही होगा. और धीरे धीरे दुर्गति होती चली गई है. So I would say fine, I would say we need to reset the whole system. जब कंप्यूटर हैंग हो जाता है, you hard reset it. Reset मतलब we have to get rid of this mentality, I am a Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Shudra. There is nothing of it. All are Shudras. All are Shudras. Don't forget about this, all this thing. Let's stop all this classification. Reset. We all are Shudras. We need to get trained up. That's it. If we live with that sense, then maybe we can make some progress. Otherwise, confusion रहेगा. तो don't see them as Brahmanas. वो केवल नाम के ब्राह्मण हैं. अब इसमें मैं उनके अंदर दोष नहीं निकाल रहा हूँ. मैंने आपको इसलिए उनकी स्थिति के बारे में बताया है, वैसा रहा है. And that's the thing about it. Yes. हरे कृष्णा प्रभु जी. मेरा प्रश्न ये है कि जैसे दान पुण्य की बातें हो रही थी, तो पहले के ज़माने में गाय पाला जाया करती थी घरों में, और कुत्ते द्वार का रखवाली किया करते थे. तो पहले रोटियां बना के रखते थे गायों के लिए और कुत्तों के लिए. लेकिन अब ना तो गाय रही ना कुत्ते हैं, लेकिन वो एज अ पेट एनिमल पाले जाते हैं. तो अगर हम उनके लिए अलग से रोटी नहीं बना के रखते हैं पर दान करते हैं किसी भी मंदिर में जाके या किसी भी माध्यम से, तो क्या उतना पर्याप्त है? Something is better than nothing, which is correct actually. आज हम हाई राइज बिल्डिंग्स में रहते हैं, तो क्या कर सकते हैं? वो 18वीं माले पे रहने वाला व्यक्ति थोड़ा है नीचे ग्राउंड फ्लोर पे आके गाय ढूंढेगा और फिर गाय को खिलाने के बाद खाएगा. दैट्स नॉट प्रैक्टिकल एक्चुअली. तो उसके लिए हमें बताया जाता है, सिखाया जाता है कि आप गाय के नाम का राशन निकाल के रखो, महीने के अंत में किसी गौशाला में दान दे दो. गौशाला नजदीक नहीं, किसी मंदिर को दान दे दो. और आई टेल बेस्ट ऑफ ऑल चैरिटी इज स्पिरिचुअल एजुकेशन. जहाँ पर भी अध्यात्म ज्ञान पे जोर दिया जा रहा है, ऐसी संस्था को आप दे दीजिए. क्योंकि जब व्यक्ति को अध्यात्म ज्ञान प्राप्त होगा तो जो आज हमारे समाज में विकार या परेशानी हो अपने आप समाप्त हो जाएगी. दैट इज. तो इसलिए शास्त्र दान सबसे महत्वपूर्ण कहा जाता है सभी दानों में. सो आई वुड से बेटर फोकस ऑन दैट. आप सब इस्कॉन से जुड़े हुए हैं. इन शॉर्ट, आप चाहें तो आप कुछ इस्कॉन को दे सकते हैं, जिससे वह देखिए उनकी गौशाला भी रहती है, उनका फूड फॉर लाइफ प्रोग्राम भी रहता है. अलग अलग वो ज्ञान भगवतीता का वितरण करते हैं. उस प्रकार से अगर देखा जाए तो श्रील प्रभुपाद जी संस्था के माध्यम से हमें दान देने का भी अवसर दिया है और अपने शुद्धिकरण का भी अवसर दिया. अभी आपको कहीं और जाके ढूंढने की आवश्यकता नहीं है कि कहाँ पे ये सब कर सकते हैं. I feel not that because I belong to ISKCON, I am serving within ISKCON. This is my thought process. आप उसी प्रकार से जो अलग अलग संस्थाएं जिस प्रकार से सेवा कर रही हैं, आप वहाँ पे योगदान दे सकते हैं. नो प्रॉब्लम अबाउट इट. किस पे शहर में किस पे समय रह गया इतना करने का? Go and find some organization where people are dedicated for that cause and support them. उस प्रकार से.
Yes, हरे कृष्ण प्रभु जी. सो प्रभु जी आजकल स्पेशली बच्चों का जो टॉपिक था, तो स्कूल में जो कल्चर है या इवन जो फ्रेंड्स मतलब बिल्डिंग में जैसे रहते हैं एंड ऑल, सो बेसिकली ऑल द आप थोड़ा आगे आ जाइए, आप टेक्नोलॉजी के रेंज के बाहर हो गए. सो उनका जो कॉन्वर्सेशन रहता है एवरीथिंग इज मटेरियलिस्टिक, यू नो, और उनको अगर सपोज थोड़ा बहुत हम स्पिरिचुअल टॉक्स या जो भी करते हैं, फॉर देम इट्स लाइक अ वेरी यू नो आई मीन very minute for them. So you know, as parents, yeah, you know, what kind of 2 or 3 things that we can do, you know, so that, you know, I mean, these things are strengthened. सबसे पहले तो पेरेंट्स को स्वयं ट्रेनिंग स्वीकार करनी चाहिए. इट्स अ वेरी वेरी बिग सब्जेक्ट मैटर एक्चुअली. यू नो, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ पेरेंटिंग, बच्चों के लिए क्या करना है, बच्चों के विकास के लिए हमारे शास्त्रों में प्रभु जी, सॉरी माफी चाहता हूँ. फिनिश दिस. मेरा प्रश्न रिलेटेड है उससे. उन्होंने तो बोला, वही मुझे बोलना था. तो मेरा प्रश्न ये था कि प्रभु जी ने कहा अभी कि बच्चों को हम क्या सिखाएं. तो मेरा प्रश्न ये था कि हमें स्वयं पता नहीं है कि धर्म की परिभाषा क्या है. मेरे विचार में सभी यहाँ बैठे हुए हैं, किसी को संक्षिप्त परिभाषा धर्म की पता ही नहीं होगी. तो जब पता नहीं है तो उसका आचरण कैसे होगा, और बताना तो और भी कठिन. तो इसका कुछ अगर आपसे आग्रह है कि अगर बता सकें थोड़ा बहुत. Yeah, so that's the point. Let's do a little different now. I'll make it 2 points here. So parenting as itself is a big subject matter. It's not an easy thing, trust me. मैं पिछले कुछ समय से इस विषय के ऊपर पढ़ रहा हूँ. I would say a good parent means a good psychologist. जब तक आपको साइकोलॉजी के विषय में ज्ञान नहीं है, तो नहीं सही मायने में आप बच्चों को सही में ट्रेनिंग नहीं दे सकते. Because it's all a game of psychology. कैसे कैसे चेतना का विकास हो रहा है, किस स्तर पर, किस एज ग्रुप में किस प्रकार की चेतना होती है, उसको क्या देना चाहिए उसकी चेतना के लिए. देखिए, 2 चीजें होती हैं जब बच्चा बड़ा हो रहा है. एक शारीरिक परिवर्तन आ रहा है और दूसरा उसकी चेतना का भी विकास होना चाहिए. हमारा जो दृष्टिकोण आज रह गया है ज्यादातर, क्योंकि हमें चेतना का तो कुछ पता नहीं है. साइकोलॉजी वी डोंट नो. I'm not talking the modern psychology. Psychology, as Krishna speaks in Bhagavad Gita and Taittiriya Upanishad, Mundaka Upanishad talks about those Anamay, Pranamay, Jnanamay, Vijnanamay, Anandamay कोश. उनका हमें ज्ञान नहीं है, तो हमें ये पता ही नहीं चलता कि बच्चे का विकास हो रहा है नहीं हो रहा है. हमारे बच्चे का विकास किस दृष्टिकोण से है? वो आज 30 kg का हो गया है, अब 40 kg का हो गया, उसकी हाइट इतनी हो गई है, उसके स्कूल में इतने ग्रेड्स आ रहे हैं. दैट इज अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कि बच्चे का विकास हो रहा है. वो तो आप कुछ भी नहीं करोगे, वो विकास होगा कि वो खा रहा है, खाने के माध्यम हो रहा है. पर सबसे महत्वपूर्ण जो माता पिता का योगदान रहता है, या रहता था, या रहता है, जो रहेगा, वो बच्चे के अंतकरण के विकास का. We don't know about it. We don't know about it. I mean, how would you know? कहाँ पढ़ा है हमने, किसने सिखाया हमें? इसलिए जैसे कि जब मैं बड़ा हुआ, I grew up in a joint family. How can you expect a young boy and a girl who got married, let's say now they're in 20s, उनको कैसे पता हो सकता है पेरेंटिंग के बारे में सब कुछ? या तो आपने पेरेंटिंग के विषय में आपकी ट्रेनिंग हुई हो. तो पहले पेरेंटिंग कौन करता था? पहले पेरेंटिंग दादा दादी करते थे. पहले बच्चे को कौन बड़ा करता था? मदर फादर वुड अरेंज फॉर द फूड. तो बच्चे किसके संग खेलते थे? कौन खिलाता था बच्चे को? दादी खिलाती थी, दादा खेलते थे. हाँ या ना? और बच्चे को कुछ चाहिए होता था, दादा दादी के पास जाता था. दादा दादी को पता होता था क्या कहना है किस समय और क्या नहीं कहना है. तो बच्चे के अंतकरण का विकास होता था. जैसे आई सेड, पहले जॉइंट फैमिली होती थी. आज हस्बैंड वाइफ साथ में रहकर उसको जॉइंट फैमिली कहते हैं लोग. तो जब ऐसी स्थिति आ गई, इट्स बिकम वेरी कॉम्प्लिकेटेड. What to do in this situation? Now the only solution that what we can foresee, what is perceivable is at least, क्योंकि अब आपके पास समय नहीं है, क्योंकि अब जब आप ऑलरेडी आपके बच्चे हो चुके हैं, उस समय उस चीज को समझने के लिए, उस चीज की ट्रेनिंग प्राप्त करने के लिए it's gonna take its time. That's not easy. तो only way out is become a part of a community of spiritual minded people. उनके समाज के संग रहोगे, उनके बच्चों के अंदर कुछ संस्कार हैं, तो उस प्रकार आपके बच्चों को भी कुछ संस्कार मिलते रहेंगे.
क्या ये गारंटेड है कि आपके बच्चों का विकास पूर्णता होगा? नो गारंटी। भक्तों के परिवार के अंदर जो उनके बच्चे, उनके संग भी बहुत परेशानियां रहती हैं। How many of you agree, those who are parents here who have seen this community around? Raise your hand, please. It is unavoidable just because for one reason. Because कैसे पालन पोषण किया था हमें पता ही नहीं है करके, you know, बच्चे they become insecure about things. So many mental problems, so many mental issues are happening today. There are two things which I explain about the kids in today's generation. Okay, kids are here. Maybe still I'll be a little careful speaking about that. Maybe I'll speak in English about it. Two things are there. First thing is, scientifically it is proven, if kids are overexposed to information, or if they're exposed to information at a very early age, the puberty age begins to fall. What was 13 has become 11, and it is scientifically believed in coming years it will go as low as 3 and 4 years. I hope parents are understanding this. In America, the very young kids are becoming pregnant. जिस एज में हमारे मन में कभी ख्याल भी नहीं आ सकता था. Hormonal changes have not happened. It's happening very soon now. Why? Because they have been exposed so much to the information. मतलब क्या है? हर एज ग्रुप के अनुसार उनको किस प्रकार की, जैसे कि जब बच्चा माँ की कोख में होता है, उसको क्या खाना है, खिलाना है, उसका ज्ञान होता है, बताया जाता है. You cannot feed a child in your lap आलू का पराठा, बढ़ जाएगा वो. पर आज उसको स्मार्टफोन छोड़ के यूट्यूब के संग छोड़ देते हैं, उसको मार ही रहे हैं हम. I'm just touching about one subject like this, and all of you have seen in the society what's going on. So no devotee community is immune to it. ये मत सोचिए क्योंकि मेरा बच्चा, मैं भक्ति करता हूँ तो मेरा बच्चा भक्ति के वातावरण में पैदा हुआ है. No guarantee of it. I was with फैमिली आती है, कई सालों से भक्ति कर रहे थे और उनके अभी हाल ही में बच्चे का जन्म हुआ था, तो भगवान से वो सेरेमनी होती है, अन्न वाली सेरेमनी थी, उसके लिए आए थे और आए और महाराज से बोलते हैं, महाराज हमारे बच्चे को आशीर्वाद दीजिए कि बहुत अच्छा भक्त बने. You know what did Maharaj said? Maharaj touched the forehead of the child. Maharaj said, well, जब टीनेज ईयर्स का होगा तो पता चलेगा भक्त है अभक्त है. No, it's not a subject matter of joke. Now you understand what he meant. भाई तुम्हें पता ही नहीं बच्चे को रेस कैसे करना है, तो मुझसे ये पूछना कि मैं आशीर्वाद दे दूं, उसका कोई मतलब नहीं है कि बच्चा तो तुम्हारे पास है, बच्चे का तो पालन आप कर रहे हो, तुम उसका कैसे विकास करते हो, उस प्रकार का विकास होगा उसका. It's a difficult subject. My take on this, if I have to advise, I would say live in a community. Stay with the devotee circle. कम से कम आपको भी सुनने को मिलता रहेगा, आपको भी सीखने को मिलेगा, बच्चों को भी सीखने को मिलेगा. And we need to plan for it as a community. Raising a child, Mahabharata says, Vidurji says, raising a child is an effort of a community, is an effort of a village. Actual words of village, not of a family. कोई parent raise नहीं कर सकते. They don't have the ability only. I mean, think about how many of you were raised by a community. I can say I was raised by a community. When I was with my parents' family, father's family, I was raised by दादा, दादी, ताऊ, ताई. जब मैं नानी के घर जाता था, नानी के घर में नानी, नाना, मामा, मामी, they used to raise. How much I was with my parents. खाने के समय माँ बाप याद बुलाते थे, बाकी I was always with some of the family members like that. I would like to ask a question, not like a devotee, not like an ISKCON, like a common person. What is the proof? Who's the CEO and who are the other ministers? Who is the supreme? What is the proof according to a common person? How do we know what is the proof? That's what you're asking, right? Like with the Kerala story, the girl was confused. Correct. So what is the proof? Like how Correct. would What is the proof person... about it? Again, हमारे जितने भी शास्त्र लिखे गए हैं, they all had one main objective: evolution of consciousness. इसलिए मैंने आपको शुरुआत में बताया था, हर कोई व्यक्ति जब जन्म लेता है उसकी चेतना पशु के समान होती है. अगर आप उसको शिक्षा नहीं देंगे तो उसको नहीं पता खाते कैसे हैं, पहनते कैसे हैं, साफ कैसे करते हैं. हाँ है ना? This is what an animal is. Animal means eat anything, the child will eat anything. तो हमारी वैदिक संस्कृति का जो उद्देश्य रहा है शुरुआत से वह है
इस पशु चेतना से उसको मनुष्य चेतना में लाना। मनुष्य चेतना क्या है? मनुष्य चेतना के लिए बताया गया है नो मीडिएटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स। दिस इज नॉट अ डिवाइन कॉन्शियसनेस, दिस इज अ ह्यूमन प्लेटफॉर्म। ये मनुष्य योनि, मनुष्य क्या करता है, ये मनुष्य का स्तर है। दिस हैज बीन अ बेंचमार्क, दिस हैज बीन सेट। ये नहीं है दिस इज अवर, वी आर बिलो ह्यूमन, वी आर एक्चुअली ऑन एनिमल प्लेटफॉर्म, एनिमल कॉन्शियस, विच मीन्स जो मन आया खा लिया, जो मन आया कर लिया। यू नो, जस्ट लाइक अ कैमल, कैमल ईट्स कैक्टस। वो कैक्टस को खा के अपना पोषण नहीं करता। कैक्टस जब खाता है तो उसके कांटे से उसकी जिह्वा में छेद, मतलब जिह्वा में चोट लगती है। जिह्वा में जो चोट लगती है तो जो खून निकलता है वह उस खून को ही चखता है, उसको लगता है कैक्टस कितना अच्छा है। जो मनुष्य आज स्मोकिंग करते हैं, अलग अलग चीजें करते हैं, व्हाट इज द एंजॉयमेंट? हाउ मच दे आर डिफरेंट फ्रॉम अ कैमल? दिस इज एनिमल कॉन्शियसनेस। उसके ऊपर लिखा हुआ है ये आपके जीवन के लिए हानिकारक है। Again, a human being does it. That's animal consciousness. Human consciousness is no mediating, no intoxication, no gambling in sex. What is the divine consciousness? That's a journey. That's a journey of self-discovery. और उसके लिए दो मार्ग है। भगवान के इसलिए तीन अस्तित्व बताए गए हैं। वदन्ति तस् तत्त्वविदस् तत्त्वम् यज्ञानम् अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। ब्रह्मन, परमात्मा, भगवान। यहाँ जो ऋषि मुनि जो बैठे हुए हैं अनेक अनेक सालों से जो तपस्या कर रहे हैं, द एमिंग फॉर द परमात्मा रियलाइजेशन, मेडिटेटिंग अष्टांग योग का पालन करके, और हमें भगवद गीता के माध्यम से, गुरु के माध्यम से हमें पता चला हाउ कैन वी गेट एक्सेस टू भगवान रियलाइजेशन। सो एवरीथिंग दैट वी आर डूइंग, द गोल ऑफ एजुकेशन इज ओनली वन, evolution of consciousness. If that is not happening, we are living a life of an animal, and we die as an animal, and we take birth as an animal. Antakale jamameva smarmukta kalevaram. Or as the next was yamemapi smarmukta ayamemapi smaran bhava. Like that, you know, the shloka that goes in the 8th chapter. आपकी अंतिम समय में क्या चेतना रहेगी, आपका अगला जीवन आपकी चेतना के अनुसार मिलता है। तो आपने अगर चेतना पशु के समान रखी तो आपको क्या मिलेगा? पशु योनि। That's how. Now the subject matter of who is the God, first of all let's understand who am I, then we'll search for God. पहले इतना तो पता चल जाए कि मुझे पशु से मनुष्य बनना है। मनुष्य के स्तर पे आके नाउ आई हैव टू डेवलप अ डिवाइन कॉन्शियसनेस। जब व्यक्ति की ट्रेजेक्टरी वो होती है तब विषय बनता है भगवान कौन है। जब वो ट्रेजेक्टरी नहीं है तो हम भगवान नहीं खोज रहे, हम एक पॉलिटिकल लीडर ढूंढ रहे हैं जो हमारा पालन पोषण करेगा। तो इन वन वे may sound harsh, but जो आज के modern day religions and they're just none other than different political parties. It's just a canvassing going on the name of some god. Which god? There is no information about God. So from where should they find out? See, where they should find out, as I said, Is there a certain book? the whole process of making a human being begins with education. एजुकेशन ऐतिहासिक तरीके से वैदिक पद्धति रही है, इसलिए मैंने पहले बताया अवर इंडियन एजुकेशन सिस्टम हैड इट्स ओन एमिनेंस। दुनिया भर के लोग यहाँ आके ज्ञान प्राप्त करते थे। अप टू 17th century India was contributing 36% of GDP to the world's economy, which means the greatest economy was in India. अब greatest economy इंडिया में रहेगी, which means the greatest knowledge was where? Where were the great scientists and the great people were born? In this country. But because of what had happened, you know, the whole Britishers, usurping everything, they took everything away from here, left us bankrupt, but yet we never became bankrupt. We're still bouncing back. हमारा external लगता है कि हम पे external comforts ना हो, but look at the spiritual wealth. Srila Prabhupada, at the age of 70, when he began to speak to those Western people, they heard him. And they started following. What evidence, what more evidence do we need about it? Did we ever spoke on the discussion of कि हमारा भगवान आपसे बड़े भगवान है or radicalization? No. Point is the discussion of what is truth, what is not truth. And look at the result about it. So, Vedic education had been the oldest and the original way of understanding about life.
और समय के साथ साथ जब वैदिक संस्कृति का नाश होना शुरू हुआ तो अलग अलग जगह पे अलग अलग धर्मों ने जन्म लिया, और धर्म का उद्देश्य क्या था? पशु से मनुष्य को जन्म देना. The religious education was all about training them how to live a life as a human. As I quoted, the religion which was born in the desert, they said no sex is mother and daughter. What it indicates about it? उस प्रकार से ये इस प्रकार से चेतना का विकास. और now the choice is yours. आप कहाँ से ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं? That choice you have to pick it from where you want to do it. और व्यक्ति सोचता कहाँ है? वो सोचता नहीं. खाओ पियो मौज करो. कल का किसने देखा है? We have become too much victimized by our senses. We don't want to put effort to it because मेहनत लगती है करके. इतना सब कुछ होने के बाद, इतनी सब चीजें होने के बावजूद अगर ना व्यक्ति समझ पाए, so just maybe he's too lazy. इसलिए कहा गया है, what is the श्लोक? प्रायेण अल्पायुष्य सभ्य कलावस्मिन् युगे जना मंद समंग मत भाग्य उपद्रुतः. सो कलयुग में जो प्राणी है बड़ा ही मंद भाग्य है और मंद बुद्धि है. क्यों? क्योंकि वो हर चीज के लिए प्रयत्न करेगा पर अपने चेतना के विकास के लिए कभी भी प्रयत्न नहीं करेगा. अपने खाने पीने के लिए अगर आज एसी रूम नहीं मिला तो एसी रूम क्यों नहीं मिला, दिन भर दुखी रहेगा, पर अपनी चेतना को लेकर कभी दुखी नहीं रहेगा. मेरी चेतना किस प्रकार से नाश हो रही. सो दिस इज द लेवल ऑफ अ ह्यूमन बीइंग. नाउ आई डोंट नो इट्स अ ह्यूमन बीइंग और व्हाट, बट चेतना के दृष्टिकोण से देखोगे वो पशु की चेतना है. शरीर मनुष्य का है, तो जैसे मनुष्य के 4 पैर होते हैं, पशु के 4 पैर होते हैं, उसी प्रकार से जिसकी चेतना आज पशु के समान है वह 2 पैर का पशु है. This is how the spiritualists look at it, the situation. All right.